गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे को हिंदी में बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। हैदराबादी हिंदी आता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है और ट्राई करूँगा। गलत है तो माफ़ करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है विष्णु मंचू। आई एम मिस्टर मोहन बाबू's son and I'm proud of that. And if not for my father, I don't think I would have ever been an actor. So I'm grateful and I'm thankful to God. And if not for my father, I don't think Mr. Akshay also would have acted in my film. So thank you, Mr. Akshay. I will talk a little more later, but I think we are going to see the teaser now. In last year in Cannes Film Festival, we had shown our teaser, and after 2 weeks we brought it out to the audience. In the same fashion, today, only for the Hindi media and for the select audience here, we are showcasing the teaser, which will be released by Akshay sir, and day after tomorrow, the whole world will be seeing. The only reason we are bringing it here to be, this teaser is launched by Akshay sir. And I know 2 weeks is too much of a gap. I would be slapped by everybody now in India. So we are launching the teaser today, and this is for you. I would request all of you not to record it now. At Q&A, of course, you can record. It's just a sincere request to all of you. Thank you very much. I'll talk to you again soon. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much. विष्णु सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स विदाउट एनी फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लेबर ऑफ लव जो है और ये डिवोशन को एक अलग लेवल पे ले जाता जो कुछ है वो हम यहाँ पे चलाने वाले हैं। एक टीजर जो इससे पहले हम सब ने देखा है, उसे बड़ा सारा प्यार दिया। वी आर गोइंग टू प्ले दैट फॉर यू। सुपर सुपर। एंड नाउ एज सर रिक्वेस्टेड, अपने फोन्स जो हैं उनको प्लीज बंद कर लीजिएगा, लेंसेज को थोड़ा इधर उधर कर लीजिएगा। अक्षय सर, लॉन्च ओके। चलिए, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधे ये पोस्टर को यहाँ ले लीजिए और लॉन्च करते हैं। चलिए ले लीजिए। सींचा है इसको अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। विष्णु मंचू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन। The actor and of course the screenplay writer and of course the producer. Sir, 10 साल की मेहनत। We are talking about devotion, we are talking about that faith. Tell me, आप इस समय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डिवोटी बन गए हो सर, 10 साल इसको दिए हैं। What do you have to say on that? मेरे से ज़्यादा डिवोटीज है इंडियन सिनेमा के लिए। One is there, right there, sitting there. See, ये स्टोरी पहले 2015 में मेरे को आइडिया आया। Someone else gave me the idea, and since then I've been traveling because to mount up a movie of this scale at that time, my market wasn't big enough, and in 2022 January, we were looking at making another film, and even at that time, my market is not the scale of this movie. Definitely no. There's no shame in saying this Friday will definitely make my day. Wow. And when we started off with it, the whole idea was with my father. He was like, "You've been working on this film for quite some time. Go ahead, do it now." Maybe it's Lord Shiva's, made him say that, and then everything fell in place. And it's all Lord Shiva's blessing. Who am I? I just executed his order. That's all I feel like. This journey just went on for a decade, sir. A lot of hard work has gone into it. कभी ऐसा हुआ कि doubt आया हो sir? Like devotion की बात हो रही है, but was there a moment where you thought that what have I gotten myself into? Not even once. Faith can move mountains, and everything fell in place. All the people I wanted to act in the movie, and I made my effort, and every one of them fell in place, and they've done it. And when you watch the movie, the journey in the last 2 years has changed me as a human being also. So, when you watch the movie, I hope I'll be able to tell what
we have been dreaming about and trying to bring on to life. I'll be, you just talked about the people. जस्ट जी, एक जब कास्टिंग की बात चल रही थी तो जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो चाहा वो मिला, जो पहला नाम इन्होंने शिव के लिए लिया था शिव के कैरेक्टर के लिए, वो अक्षय जी का ही था। और उस समय शायद हम कांटेक्ट नहीं कर पाए या जैसे भी बात नहीं बन पाई, लेकिन अल्टीमेटली जो हमको शूटिंग करना था उससे थोड़े दिन पहले अक्षय जी ही इस किरदार में नजर आए। So we have Akshay sir here, Mohan Babu sir इसमें है, मोहन लाल sir हैं, प्रभास sir इसमें है, getting all of them together, it's like वो आप सारी शक्तियों को एक साथ लेके आ गए हैं। उसके ऊपर what do you have to say? See, Mr. Akshay Kumar and well, we don't have a personal relationship per se. But now I'm thankful, I'm grateful for I've met him, a wonderful human being, and I'm sub junior to him as an actor. I have a lot to learn from him also. And when he walked into the set, there are a lot I learned also. I keep learning, and some people like Mr. Akshay Kumar, they inspire people by just being who they are. And today one of the biggest superstars in the country. As his junior, I have to learn what made him. There are many other actors who came along with him, but not every one of them are superstars. He sustained, he's like that. So what made him like that is I believe it's only his discipline and his love for the craft. And that I have to learn. And all the people you see on the poster over here, let it be Mr. Mohan Babu or Mr. Mohan Lal or Prabhas, they all have what others don't have, is an undying spirit of never giving up. And that's what I learned. And everybody fell in place. And most of them in this movie acted because of the love and respect they had for my father. And I have to be grateful for Mr. Mohan Lal, who's a legend on his own right. And Prabhas, my brother, he didn't even think twice. I had to he said, father came and asked me. I was scared why he was asking me, calling me. And then I said, you should have called me. Don't ask him to call, because dad has that kind of persona back home. So I'm grateful for all of them, and even to Mr. Akshay Kumar. An actor of his stature, he doesn't need to come and do the character what he did. But for me, when I thought of Lord Shiva, it was him. And it wasn't easy getting him also. He rejected it twice. And yeah, but ultimately I had to ultimately it was all Lord Shiva's insistence that he agreed. Check. But not yet. चेक इसमें है, कोई बात नहीं, चेक इसमें है, कर लीजिए प्लीज। 1 2 4 ऑडियो चेक, ये काटना पड़ेगा आपको। हाँ, आया ना? लवली, पता था मुझे सर। See, बताना, कुछ बोल देता हूँ तब पता लगा। हाँ जी सर। April 25th आप लोग कन्नप्पा देखेगा. And remember this, for this generation, anybody who thinks of Lord Shiva, I hope and I'm confident it will be Mr. Akshay Kumar's picture which will come into our minds. And that's the kind of devotion we kind of made the movie in. And that's what he portrayed. On that note, ladies and gentlemen, thank you so much. Vishnu sir, please, Mukesh sir. I just want to add one more thing. He was talking about Akshay sir. मैंने पहले भी कहा था और मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कहावत सुनी थी हिंदी में कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता. और जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया तो पूरी यूनिट के साथ जो उनका बिहेवियर था वो मुझे वही कहावत याद आ गई कि सचमुच बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को अपने सामने छोटा नहीं महसूस होने देता. थैंक यू सर. Thank you for inspiring. One of the most genuine superstars of our industry, ladies and gentlemen, on screen, off screen. Give it up for Mr. Akshay Kumar, sir. Whoa. पूछिए.
नहीं, मैंने कहा सर आप मुझे मालूम है, प्रश्न लेके आए थे, पूछ लीजिए। मैंने कहा था, मना किया था, पूछ ले, जो लिखा हुआ पूछ ले। मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला, महादेव की बात करते ही आपका ही चेहरा सामने आ रहा है, तो अब इंडस्ट्री के मतलब हमारे क्विंट एसेंशियल महादेव के रूप में आपको हर कोई देख रहा है। ये मेरी किस्मत ही है, बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे मौका मिल जाता है। और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कनप्पा में शिव जी का। तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे अच्छे रोल में। मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मेरे फादर जब इधर आए थे मुंबई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमको बड़ा मज़ा आता था, शूटिंग देखने में जाते थे हम बहुत। मैं बात कर रहा हूँ 1970 की। तो मेरे फादर खड़े हुए थे, शूटिंग देख रहे थे, तो एक आदमी आता है, उनको कहता है कि भाई साहब एक्टिंग करोगे? हाँ जी, हाँ। ही वॉज शॉक्ड। वैसे मेरे फादर बहुत 6 फुट 1 इंच के, बहुत टॉल, ही वॉज अ रेसलर, आर्मी में काम करते थे। तो बोला चलो आ जाओ, और आप विश्वास नहीं करोगे, लेके उनको शिवजी का कॉस्ट्यूम पहना दिया था। सो वो शिवजी बने थे। तो वो मतलब भले वो 5 सेकंड के लिए बने थे, 5-10 सेकंड के लिए, तो वो उनका पहला था। तो मेरी किस्मत है जो मुझे उनके बेटे को भी यही रोल मिल गया। That's it. क्या बात है। जस्ट वन मोर क्वेश्चन सर, क्विकली। तेलुगु फिल्म डेब्यू, यू नो, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, अब ये एक और डेब्यू हो रहा है आपका, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा। जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं कि क्यों मना किया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो इनका ही फ़ोन, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं विष्णु जी को नहीं जानता था, इनके फादर को ज़रूर जानता हूँ। तो सडनली फ़ोन आया तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। और एक्चुअली मुझे भी फ़ोन नहीं किया था, किसी और को गया था, और वो भी किसी और के थ्रू से आया था, सुधा मैडम के थ्रू से आया था। मैं राइट? सो पता नहीं चला था। एंड यू नो, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल कॉल एक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑल, जहाँ इट्स अ होक्स कॉल, इट्स अ रॉन्ग कॉल, एंड दे फूल देम। फिर चल गया, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही चला लो। तो पता नहीं चलता, तो इसलिए आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू नो एवरीथिंग, देन आई गॉट इनटू इट, देन आई मेट हिम। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम, ही केम टू माय ऑफिस, एंड व्हेन आई सॉ हिम एंड द वे ही स्पोक, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इनको पहली बार इधर देखा है, ही साउंड सो जेन्युइन, सो जेन्युइन। मैं नहीं जानता था इनको। मैं जब इनको पहली बार मिला, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, और अभी भी मैं वही देख रहा था, मैं बैठा हुआ था, इनको मैं देख रहा था। मुझे हिंदी नहीं आती बराबर, मैं हैदराबादी हिंदी के हिसाब से बात करता हूँ, बट द वे ही सेज इट, द वे ही टॉक्स, ही इज़ कम्प्लीटली अ जेन्युइन मैन, ही इज़ अ जेन्युइन प्रोड्यूसर, ही इज़ अ जेन्युइन एक्टर, and that is what leads it forward. Then after that, I didn't have to ask him the whole script or anything. I just went with the flow, and that's it. And that's how I came into the film. That's it. Thank you so much, sir, for sharing all of that. I know you have a lot of questions, so we'll quickly get the chairs and Forget the let's chair, quickly- ना? चलेगा सर? 15 मिनट उसी में चले जाएंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें। Okay, so where are we getting the first okay? question from? आइए, रेखा जी, माइक। Also, मधु मैम प्लीज आइए। मधु बालाजी के लिए जोरदार तालियां। As I said, you know, action oriented अवतार में after a long time we seeing her and Arpit Ranga साहब, of course he is here. पहले टीजर में धमाल मचाया, अब तक मचा रही हैं जी सर। एंड मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं मधु जी से मिला हूँ। मैंने एक फिल्म इनके साथ की थी, शी प्लेड माई लीड रोल विद मी, a film called Elan. I know, I didn't forget it. So I only reminded you outside. Zalim भी की थी. So I'm today very happy. I'm meeting her after I think 20 years or something. I'm seeing you, but you haven't changed at all. Thank you. You look the same. And I told her also, ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ऐसा लगता है रात को फ्रिज में जाके सो जाती हैं।
नमस्कार, थैंक यू सो मच, इतना प्यार एंड सो मच अप्रिसिएशन। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग याद रखते हैं, और आप स्पेशली मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मैंने कम से कम 10 से 15 साल तक मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, और मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री से मैंने दूर रखा। इसके बावजूद जो मुझे आप लोग याद रखते हो, प्यार देते हो, मैं बस सिर्फ आई एम ओनली हम्बल्ड एंड आई फील ग्रेटफुल। और ग्रैटिट्यूड की अगर बात करें तो आप विष्णु जी को सुने, और ही इज़ सो हम्बल, एंड ऑफ कोर्स अक्षय, दे आर ऑल नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी। हम सारे जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पिक्चर की बात बाद में करते हैं, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, एंड दे हैव अर्नड इट. So I also feel very grateful for the same reason that I must have done something good in my life to be here today before all of you. And second of all, अगर मैं ये कहूँ कि this movie is very special for me, to be a part of this stage, दोबारा आने के बाद आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ सालों से आई एम वर्किंग अगेन, और मैं आपको मिलते आती हूँ अलग अलग फिल्मों के साथ या सीरीज़ के साथ. हर बार मुझे ये फीलिंग आती है कि आई एम सो लकी टू बिलोंग हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. सो आई थैंक एवरीबडी, मुकेश जी द डायरेक्टर, फॉर गिविंग मी दिस. मैंने ये कहा कि यहाँ एक्शन हीरोज़ के बीच में मैं खड़ी हूँ, प्रभास, अक्षय एंड विष्णु, और मैंने भी तलवार लेके मैंने भी कुछ ऐसे 2-4 शॉट किए हैं. आई होप कि आप मुझे उस रूप में देखें एंड यू अप्रिशिएट मी, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि जैसे आई एम द एक्शन क्वीन. I felt like that. So thank you so much for giving me this role, Vishnu, and he's a great producer. हर बार आप सुनते होंगे ना, कहते हैं ना कि ये फिल्म ऐसे नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, जैसे लगता है पिकनिक. और ये वाकई मेरे लिए पिकनिक था, क्योंकि न्यूजीलैंड में थे और मैंने स्काई डाइविंग भी की अपने को एक्टर के साथ, और फिर मोहन सर के घर में जाके घर का खाना खाते थे. It was everybody was playing, and Vishnu really looked after us. कभी भी एक दिन भी ऐसे, और मैं अपने घर से 10 दिन से बाहर नहीं रहती हूँ. आई गेट वेरी अपसेट एंड वेरी लाइक दैट. लेकिन कैसे 25 दिन निकल गए न्यूजीलैंड में पता ही नहीं चला. दिस इज़ अ ग्रेट यूनिट, एंड विथ अर्पित वी वॉच्ड ऑल द मैचेस. सो इट वॉज ट्रूली वर्क with pleasure, and thank you so much for having me here today. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing all of that. And I want to give one more special note, please, for Akshay. He's a special guy because we've done movies back in the 90s. So 90s ke baad to share a film and to share a stage is really special. Thank you. Thank you so much, ma'am. Arpit sir, quickly, I'll come to you, of course. आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ तो मुझे अक्षय सर की एक बात याद आ रही है कि सभी एक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन लक 1% एक्टर्स का होता है. मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मोहन बाबू सर और विष्णु सर ने मुझे इतनी बड़ी मूवी में चांस दिया एज ए मैन विलन. और मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, आपकी जो मैंने फिल्म देखी मैं प्रीव्यू में, तो वो अगर शेयर कर सकता हूँ तो. अभी 10 दिन पहले मैंने कनप्पा फिल्म देखी थी मैंने. पूरी कहानी बता दे. नहीं मैं वो कहानी नहीं बता रहा हूँ सर, नहीं बता रहा हूँ. तो मोहन बाबू सर ने मुझे बुलाया था कि अर्पित हिंदी डब हुआ है तो आप देखो कैसा लग रहा है. तो सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरे जैसा अगर बड़ा आदमी, अगर इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर फिल्म देख के रो सकता है तो मतलब वो फिल्म कैसी होगी. मैंने इतने सालों बाद कोई फिल्म देखी जिसमें मैंने मतलब लास्ट के 40 मिनट्स तो पूरी बॉडी में घुसबम्स थे मेरे. तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ये फिल्म आप ज़रूर देखें. आप सबको ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी. हर हर महादेव. थैंक यू सो मच. टीजर में सबसे ज्यादा कलेश इन्होंने मचाया है, एंड ही इज द वन हु इज सेइंग कि मैं रोया. ओके, नाउ इट्स ओवर टू यू जी. कहां